threatened task का नहीं बता रही हूँ मैं. हाँ, let's come to the programming model. So when we talk of the programming model of our microprocessor, the first thing we study about is the registers that are available with it and the types of memories. Okay. So now first come to the registers. Okay. मैम आप स्क्रीन शेयर कर रही हो क्या? अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या? ओह सॉरी. नो मैम. Okay. Let me share my screen. Not share. प्रोग्रामिंग मॉडल की सबसे पहले बात करते हैं. There are two types of registers, program visible registers and program invisible registers. Sometimes there is a question directly asked, what are program visible registers and program invisible registers? So what you have to share is that program visible registers are those registers which you have access to in your programs directly, and program invisible registers are those registers which you cannot access in your program directly. So there are examples of those registers also, and we'll learn about program invisible registers in the protected mode. So for the time being, just get to know about that basic definition, that is कि the program visible registers आप directly use कर सकते हो, program invisible registers आप directly use नहीं कर सकते अपने programming. Okay, that is used by system and all. 802, 86 and above contain program invisible registers, और we are working with the 8086 and 8088 के infrastructure के साथ हम काम कर रहे हैं, जो हमारे programs हैं that are based on that programming. So that's why हमें तो invisible registers available भी नहीं है, but अगर available भी होते तब भी हम उन्हें use नहीं कर सकते थे because they are used by systems. Okay. 808386 through core to microprocessor contain full 32-bit internal architecture. Just छोटे definitions हैं, पढ़ने जाओ. 8086 through 80286 are fully upward compatible to जो भी आपके programs 86, 286, 88 में बने होते हैं, they are fully compatible to your higher level microprocessors. Okay, which is because your memory is divided into two, which you now are familiar with it, but we'll revise everything. Okay, so this is a programming model of 8086. ठीक है, जो ये 64 बिट एक्सटेंशन है, ये पूरा का पूरा 8086 में अवेलेबल नहीं है. 8086 में आपको यहीं तक अवेलेबल है, but when you will go to the higher level microprocessors, you will also see these kind of register. This particular set of register is not available with your 8086. Okay, so this is a set of your register because so many people had doubts that AH and AL are different register and AX is a different registers. So now just clear this doubt that AH and AL is a part of AX. The AH and AL in a combined form is addressed by AX, and AX with this part is combined form of EX. So if you are addressing this whole section, you have to name it as EX. If you are addressing this section, you have to name it as AX. But your AH and AL are not individually available to you now. They are also included in your AX. And if you want AH or AL, you can also individually access them. So yesterday we had a problem of accessing this part. So if you can see here that this part has no direct access, as this part has no direct access by our program. इसको directly access नहीं कर सकते. Accessible है हमारे program में, लेकिन there is no direct access for this part of the program, this part of the register. Okay, इस part के लिए है, इस part के लिए है, इस part के लिए, but इस part के लिए directly access नहीं है. तो हमने वहाँ पे pointers use किए थे. ठीक है? Now this is R flags, E flags, flags. Again, flags is a part of E flags and E flags is a part of R flags. Now you have instruction pointer and then you have some segment registers. Okay, now we'll talk about this in detail. I will just go through it. मैं जल्दी चलूंगी. If you have a doubt about particular register, just turn your mic on and let me know. Otherwise, ये बहुत ज़्यादा रटिफिकेशन वाली चीज़ है, तो इसको तुम एक बार पढ़ भी लोगे और पेपर के टाइम पे तो इट विल बी इनफ. कुछ समझाने वाला नहीं है इसमें. ठीक है. RAX इज एन एक्यूमुलेटर. RAX इज अ साइज ऑफ 64 बिट. देन EX आता है 16 बिट का. देन 8 बिट के आपके AH एंड AL आते हैं. ठीक है. एक्यूमुलेटर इज यूज्ड फॉर, अभी तक आपने इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं, यू नो के एक्यूमुलेटर के क्या क्या यूज हैं. कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए. Remember last class we did DAA, so it was an adjustment instruction and we were using accumulator for that. Now come to the address space. If your address bus is of 16 bit,
It can access 64K byte space. If it is of 20 bit, it can access 1 megabyte and so on so forth. This is important because when I will teach you about segment plus offset addressing, so you should know कि how 16 bit to 20 bit can make you access 1 megabytes of address. Okay, थोड़ा फास्ट हूँ, बट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डाउट पूछ सकता है, और मैं स्लो हो जाती हूँ, इधर स्लो नहीं हो रही है बिकॉज ये बहुत बेसिक सी चीज है. ठीक है, जब सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग आएंगे रियल मोड में, आई विल एक्सप्लेन यू स्लोली. Base address, base index, it is addressable as RBX, EBX, BX, BHBL. Something holds offset address of a location in the memory system in all versions of the microprocessor. Most of the time it is used for holding base address of any memory location. But you have also used it for various multi-purpose projects. For temporarily storing the results of addition, subtraction, multiple division, you have used BX there also. Counter register CX is generally used for holding the count of your counter of your loops. RDX is a data journal purpose register. It can be again used for multi purposes, but generally it is used for interrupt और को स्टोर कराने के लिए आप इसको यूज करते हो. ठीक है, मल्टीपर्पज है तो वैसे भी आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो. नेक्स्ट आता है बेस पॉइंटर. बेस पॉइंटर आपका पॉइंट्स टू मेमोरी लोकेशन फॉर मेमोरी डेटा ट्रांसफर. ठीक है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करता है जब हम मेमोरी डेटा ट्रांसफर करते हैं. DI and SI, destination index and source index, it is these particular registers are used when we are doing string transformation. जब हम a block of data या a block of strings को हम ट्रांसफर कर रहे हैं from one memory location to another, then we are using DI and SI. ठीक है, जो SI है वो हमारा डेटा सेगमेंट को पॉइंट करता है और जो DI है हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट को पॉइंट करता है. ये आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है. ठीक है, आता है ये वाले रजिस्टर जो है R8 to R15, they are only available in Pentium 4 and Core 2. ठीक है, if 64 bit extensions are enabled, only that case. In other all the microprocessor, these registers are not used. So that's why you don't have access to these registers in your program. Okay, now come to the special purpose register. Now there are certain registers we cannot use openly in our programs. Okay, these registers are RIP, RSP and E flags. Okay, segment registers होते हैं जिसमें आपके CS, DS, ES, SS, FS and GS होते हैं, which you don't have, which you should not use for any other purpose in your program. Because अगर आप कोड सेगमेंट को हिला दोगे तो आपका प्रोग्राम का जो एड्रेस है वो गायब हो जाएगा, अब आपका प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली. ओके, so ये पर्टिकुलर जो आपके रजिस्टर्स हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर या फ्लैग्स की अगर बात करें तो वी डोंट यूज देम फॉर आवर पर्पसेस, वी जस्ट लेट देम बी. एक बार क्योंकि फ्लैग्स भी आपका हर इंस्ट्रक्शन के बाद चेंज होता है. अगर आपकी कोई अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उस केस में आपका फ्लैग्स चेंज होता है. आपका SP IP भी हर इंस्ट्रक्शन के बाद चेंज होता है, डिपेंड्स कि आप स्टैक यूज कर रहे हो या नहीं. CS DS ES में आपकी वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो आपका प्रोग्राम यूज करता है टू रन द प्रोग्राम प्रॉपर्ली. तो इन रजिस्टर्स को वी डोंट यूज इन आवर प्रोग्राम. दैट्स व्हाई दे आर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स. ठीक है, RIP, you know, instruction pointer holds the address of the next instruction that is to be executed. RSP addresses an area of memory called the stack. Stack, अगर हमारे प्रोग्राम के लिए कोई स्टैक स्टोर है, कोई स्टैक हमने डिफाइन करवाया हुआ है, तो उस स्टैक का एक बेस एड्रेस होगा, उस स्टैक का एक ऑफसेट एड्रेस होगा. उस स्टैक का बेस एड्रेस हम स्टैक सेगमेंट में डालते हैं, SS में डालते हैं और पॉइंटर के लिए हम SP यूज करते हैं. तो अगेन दीज टू रजिस्टर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर अस, दे आर स्पेशल पर्पस. ओके, नेक्स्ट आता है आपका फ्लैग्स. फ्लैग्स आपकी कंडीशन बताता है कि जो भी आपके प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई हैं उनकी कंडीशन क्या क्या थी. फ्लैग्स की हेल्प से हम कंडीशंस चेक करके लूप कर सकते हैं, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल लूप्स, कंडीशनल जंप्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. तो दैट्स व्हाई फ्लैग्स शुड अगेन नॉट बी यूज्ड बाय अस फॉर एनी अदर पर्पस, क्योंकि फ्लैग्स में जो डेटा होता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स टू रन. कंडीशनल लूप यूज कर सकते हो, कंडीशनल जंप यूज कर सकते हो, तो वो उसके लिए आपका फ्लैग्स का डेटा प्रिजर्व रहना चाहिए. ठीक है, फ्लैग्स आर अपवर्ड कंपैटिबल हैं. व्हाटएवर फ्लैग्स, ई फ्लैग्स है, चाहे एफ फ्लैग्स है, चाहे आर फ्लैग्स हैं, दे आर अपवर्ड कंपैटिबल विद 8086 थ्रू कोर 2. तो जो भी प्रोग्राम आपको फ्लैग्स के साथ 86 या 88 में लिखा गया है दैट विल बी कंपैटिबल थ्रू कोर 2. ओके, जो राइट मोस्ट 5 एंड ओवरफ्लो फ्लैग होते हैं, they are changed by most arithmetic and logic operation. Data transfer से they don't get affected, but
विद द हेल्प ऑफ डेटा। अब जब आप अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो तब आपके जो राइट मोस्ट 5 बिट्स होती हैं और ओवरफ्लो फ्लैग होता है, दैट गेट्स अफेक्टेड। राइट मोस्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। देयर हैव बीन मेनी टाइम्स, आई थिंक इननंबरेबल ऑफ टाइम्स, ये 5 बिट्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सो फ्लैग्स नेवर चेंज फॉर एनी डेटा ट्रांसफर और प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशन। अगर कोई प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशन है या फिर कोई डेटा ट्रांसफर है तो आपका फ्लैग नहीं चेंज होता। लेकिन जब आपका फ्लैग चेंज तब होता है जब आपकी कोई अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होती है या फिर आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के केस में होता है, मोस्ट ऑफ द केस, या फिर ओवरफ्लो के केस। Okay. Now come to the flag bits again. C holds the carry. Holds the carry after addition and borrow after subtraction. Okay. If you are some was having something carry forward to which was out of your range, it will be stored in carry. Parity count करती है even or odd. Logic 0 for odd parity, logic 1 for even parity. Number of ones check करती है. If a number contains 3 binary 1 bit, it has odd parity. अगर number of ones जो है वो even form में है तो it has even parity. Okay. ऑक्सिलरी कैरी, अब आपने ऑक्सिलरी कैरी के साथ कल काम किया है। देखो, जब भी हमारा इन बिटवीन जो हमारे कैरीज जनरेट होते हैं, सपोज मेरा एक प्रोग्राम है उसमें मैं EAX को EBX के साथ ऐड कर रही हूँ, तो इन बिटवीन जो मेरे कैरीज जनरेट होते हैं वो मेरे ऑक्सिलरी कैरीज होते हैं। ओके, और जो मेरा फाइनल कैरी जनरेट होता है जब मेरा EBX EAX पूरा ऐड होके जो फाइनल कैरी होता है वो मेरा कैरी बिट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, so auxiliary carries in between the carries, positions 3 and 4 of the result generally. Next आता है आपका Z0 shows that the result of an arithmetic or logic operation is 0. साइन फ्लैग बताता है कि आपका जो अरिथमेटिक का जो रिजल्ट था लॉजिक इंस्ट्रक्शन का या अरिथमेटिक का, उसका साइन क्या था, नेगेटिव था या पॉजिटिव था। ट्रैप बिट मैंने फिर से बताया था, इट्स अ डीबगिंग फीचर। इट व्हाट विल यू डू कि जब भी आपकी ट्रैप बिट ऑन होगी तो आपकी हर इंस्ट्रक्शन के बाद ऑन डिबगिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी जो ट्रैपिंग होगी आपके प्रोग्राम की, ठीक है, उसके लिए आपके पास एक और थी INT3 में आपके पास क्या फैसिलिटी थी दैट यू कैन प्रोवाइड INT एनीवेयर, बट व्हेन यू आर डूइंग you are trapping your execution of your program after every instruction. So trapping, it's an on chip debugging. Generally फॉल्टी, ये भी फॉल्टी सॉफ्टवेयर्स को डिटेक्ट करने के लिए ही यूज की जाती है कि कहाँ तक मेरा प्रोग्राम जो है वो सही चलता रहा और कहाँ पे आके प्रोग्राम प्रॉब्लम आई। तो ट्रैप की हेल्प से हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं, INT3 की हेल्प से भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं, बट INT3 में हमें थोड़ी फैसिलिटी मिल जाती है कि हम उसे कहाँ प्लेस करें, जहाँ मुझे शक है वहाँ प्लेस कर दो। ट्रैप के केस में वो हर इंस्ट्रक्शन के बाद चेक करता है। फिर आता है आपकी आई पिन, आई बिट जो होती है वो आपकी INTR इनपुट पिन को कंट्रोल करती है। INTR की हेल्प से आपको हार्डवेयर जो इंटरप्ट्स होते हैं वो इनेबल या डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर होता है आपका डायरेक्शन, सेलेक्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मोड फॉर DI और SI। कि DI और SI का जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होनी चाहिए या डिक्रीमेंट होनी चाहिए, वो D से डिपेंड होती है। ओवरफ्लो तब अगर होता है जब साइन नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, जब साइन नंबर्स नेगेटिव नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो उस केस में आपकी ओवरफ्लो बिट जो है वो यूज होती है। ठीक है, ओवरफ्लो से यही रिजल्ट इंडिकेट करा जाता है कि the overflow indicate the result has exceeded the capacity of the machine. By the machine it means whatever the register you are using, it has exceeded the capacity of that particular register. Come to the input output privilege level, हर एक टास्क की अपनी एक इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल होती है। सपोज कोई डिवाइस है, उसका इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल डिजाइन है, तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ अभी मेरा CPU अगर बिजी है, अगर किसी और डिवाइस की रिक्वेस्ट आती है तो वो इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल को चेक करता है। अगर वो प्रिविलेज लेवल हायर है तो ही वो उसको हैंडल करता है, अदरवाइज वो उसको हैंडल नहीं करता। तो दैट्स हाउ इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल वर्क। फिर आता है नेस्टेड टास्क। टास्क बस ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड विद इन अनदर टास्क। ओके, and this is only possible in protected mode operation. फिर आता है resume, used with debugging to control resumption of execution after the next instruction. अगर आपका कोई error आई and you want to resume your program, so you use RF bit. Now virtual mode flag bit selects virtual mode operation in a protected mode system. Protected mode के केस में अगर आप virtual mode use करना चाहते हो, so you have a VM flag bit. These flag bits are least important
are never asked, but just a read, just give them a read whenever you go for exam. जब भी एग्जाम के लिए बैठो, just give them a read, will never be asked. Alignment check, flag bit activates if a word or double word it addresses a non-word or non-double word boundary. Again, VIF is a copy of the interrupt flag bit available to the premium virtual interrupt. ये जो हमारी ये वाली थी, जो VM होती है, वो Pentium 4 से ऊपर के माइक्रो प्रोसेसर में VIF बन जाती है. काम उसका यही है, virtual interrupt को दिखाना. Now VIP provides information about the virtual mode interrupt for interrupt pending for Pentium. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग हमारी virtual interrupt के थ्रू वो हमारे VIP बिट से मिल जाएगा. 71 मल्टीटास्किंग के केस में यूज होती है, बिकॉज़ मल्टीटास्किंग के केस में when you are working with so many programs at the same time, or so many programs are running at the same time, other programs will run when you are working, when your CPU is working with one program, other programs will also interrupt. Now comes to the identification flag indicates the Pentium microprocessor support the CPU ID instruction, provides the system with a, again just अगर जो आपका Pentium है उसकी ID स्टोर करने के लिए आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन फ्लैग होता है. ठीक है, the CPU ID instruction provides the system with the information about the Pentium microprocessor. Least important है. Now come to the segment registers. सेगमेंट रजिस्टर्स आपके वो रजिस्टर्स होते हैं जिनमें आपके सेगमेंट एड्रेस होते हैं. अब वो सेगमेंट किस चीज का है वो डिपेंड करता है कि हमारे प्रोग्राम में कितने सेगमेंट हैं. हमारे प्रोग्राम में देयर कैन बी 4 और 6 सेगमेंट हो सकते हैं. 4 और 6 सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं एंड सिमिलरली हमारे प्रोग्राम में देयर कैन बी 4 और मोर सेगमेंट्स. ठीक है, द सेगमेंट रजिस्टर जो है हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट है. योर प्रोग्राम कैन हैव अ कोड सेगमेंट, data segment, stack segment, extra segment. Okay, so हर segment के लिए you have a different register. Now come to the different register, different code segment registers. The first main important is the code segment. Code segment codes the address of the memory location where the code of your program is stored. उस segment के memory location का address इसमें stored होता है, base address, जहाँ पे आपका code stored होता है, जहाँ पे आपका प्रोग्राम का कोड स्टोर होता है. अब आपने इतने प्रोग्रामिंग देख ली है ऑलरेडी, सो यू नो कि डॉट कोड के नीचे जितना भी पार्ट है वो आपका जिस भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है उस मेमोरी लोकेशन का बेस एड्रेस आपके CS में स्टोर्ड होता है. सिमिलरली आपका डेटा सेगमेंट होता है. डेटा सेगमेंट में भी आपने देखा है कि जो भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो या जो भी आपका डेटा होता है प्रोग्राम का, वो जिस सेगमेंट में स्टोर होता है उस सेगमेंट का बेस एड्रेस आपके DS में स्टोर होता है. सिमिलरली इफ देयर इज एनी एक्स्ट्रा सेगमेंट इन योर प्रोग्राम, सो उस एक्स्ट्रा सेगमेंट में जो भी डेटा होगा उसका बेस एड्रेस, उस सेगमेंट का बेस एड्रेस आपके ES में स्टोर होगा. इसी तरीके से हमारे पास स्टैक सेगमेंट होता है. इफ योर प्रोग्राम इज डिफाइनिंग अ स्टैक, अगर आपके प्रोग्राम में एक स्टैक है तो जो भी सिस्टम मेमोरी एलोकेट हुई होगी आपके स्टैक के लिए उस मेमोरी का बेस एड्रेस आपके SS में स्टोर होगा. ओके, now come to FSLGS, and FSLGS are available in the higher level microprocessor 386-42 में होते हैं और एडिशनल मेमोरी सेगमेंट ये हमें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ऐसा इनका अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ओनली अवेलेबल इन 386 एंड 4. Now come to the real memory addressing. रियल मेमोरी एड्रेसिंग जब आपके माइक्रो प्रोसेसर्स शुरू में आए थे, जब वो इंट्रोड्यूस ही हुए थे, तब मेमोरी जो थी वो बहुत ही छोटी थी एंड उसका साइज जो था हुआ करता था वो 1 मेगाबाइट हुआ करता था. उस मेमोरी को हम रियल मेमोरी बोलते थे. आज अगर हम उसकी डेफिनेशन बोले तो द फर्स्ट मेगाबाइट ऑफ मेमोरी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इज रियल मोड. Maybe real mode is not in use these days, but real mode अगर आप 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करो, अगर 32 बिट भी लोग अभी भी यूज करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट मेगाबाइट ऑफ मेमोरी होती है दैट इज कॉल्ड रियल मोड मेमोरी. उसको आप रियल मेमोरी, कन्वेंशनल मेमोरी और डॉस मेमोरी भी बोलते हैं. अगर आपने बहुत पहले कंप्यूटर्स पे काम किया हो तो आपको कमांड लाइन में सारा काम चलता था. वो कमांड लाइन जो चलता था वो आपका रियल मोड मेमोरी में ही चलता था. ठीक है, जब आपकी विंडोज आई तब आपकी प्रोटेक्टेड मेमोरी आ गई, मतलब मेमोरी का साइज बड़ा हो गया बिकॉज विंडोज के लिए ऑब्वियसली 1 मेगाबाइट वाज नॉट इनफ. तो जब विंडोज इंट्रोड्यूस हुई तो विंडोज को स्टोर करने के लिए भी आपका मेमोरी साइज बड़ा होना पड़ा. बट टू मेक उससे के पहले के प्रोग्राम्स बने या जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन हुए उनको कंपैटिबल रखने के लिए रियल मोड was still in picture till 32 bit microprocessors तक रियल मोड जो थी वो पिक्चर में थी. 64 बिट में आई एम नॉट श्योर कि whether रियल मोड इज अवेलेबल और नॉट, बट मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट अवेलेबल इन
64-bit microprocessors. Okay, so रियल मोड होती क्या है? रियल मोड की एड्रेसिंग के बारे में हमें मेन पढ़ना है। रियल मोड की एड्रेसिंग बहुत सिंपल होती है। रियल मोड में हमारे पास एक सेगमेंट एड्रेस होता है और एक ऑफसेट एड्रेस होता है। हमें इफेक्टिव एड्रेस निकालना होता है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का। वो इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकलता है? हमें सेगमेंट लेके उसको अपेंड करके 0 से, because मेरा segment register is a 16-bit register and 2 to the power 16 is 64k bytes, but my memory is of 1 megabyte. तो अगर मैं 2 to the power 16 ही रहने दूंगी उसको, तो एक बार में मैं सिर्फ एक कोड सेगमेंट जितना स्पेस एक्सेस कर पाऊंगी, which I do not want. मुझे पूरी 1 megabyte of memory एक्सेस करनी है पूरी segment plus offset addressing से. So what I do is I append 0 in the segment address के कंटेंट में मैं 0 append कर देती हूँ, and then I add offset address to it and I get the effective address. We'll take the example of this. We have a segment address. यहाँ पे segment address नहीं दिया हुआ. We have this segment address. This is segment register. Whatever the segment register it is, data, CS, ES. Least bothered about that. Suppose we have a segment register and its content is 1000 and we have an offset 5F000. Now we have to move to a effective address. What we'll do is we'll add 0 to its end. It will become 10000. Now we'll add F00 to this segment address, and what we'll get is 1F000, and we'll go to our effective address. So this is what we want. So this is how memory locations are addressed in real mode memory. Okay, the addressing scheme is the most simplest. You just have to take the segment address, append 0 to it, add offset address to it, you will get the effective address. This will help you to access 1 megabyte of memory. But things were so simple when only 1 megabyte of memory was available with us. But things become complicated when protected memory came in picture, when Windows came in picture. So we had to expand our memory expand हुई, तो ये segment plus offset addressing भी खत्म हो गई. उसके बाद हमारे पास आई descriptor addressing. ठीक है, बिगिनिंग एड्रेस अगर आपको पता चल जाए तो SSF ऐड करके आप किसी भी सेगमेंट का सिर्फ रियल मेमोरी मोड में उसका एंडिंग एड्रेस निकाल सकते हो. ठीक है, अच्छा, डिफॉल्ट सेगमेंट एंड ऑफसेट रजिस्टर्स. The rule is certain segment registers will only be used with certain offset registers. ठीक है, so there is a particular table for that. वही लर्न करना है. जैसे CS के साथ हम हमेशा कौन क्या यूज करते हैं? CS के साथ आप कौन सा यूज करते हो? BP. DS के साथ आप DI, SI यूज करते हो. SS के साथ आप SP, BP यूज करते हो. इसी तरीके से there are certain rules कि particular stack segment will be used with this offset register only. उसके अलावा आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है, code segment is used with instruction pointer. I was forgetting. ये फिर से एक एग्जांपल है. चेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. I'm not explaining it again. I have explained it. But if you have problem, I can explain it. Transient program area holds the DOS, its operating system, operating other programs that contain the transient program area. देखो आपकी 1 megabyte मेमोरी में जिस पर्टिकुलर स्पेस में आपका DOS स्टोर्ड होता है उसको TPA कहते हैं. That's it. Now consider segment and offset which is asked in paper. Segment and offset addressing जो है वो relocation allow करता है. अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो this question has been asked many times. Alternate टाइम पे 2 पेपर के बाद तीसरे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो क्या होता है कि आपका जो सेगमेंट प्लस ऑफसेट स्कीम है इससे आपकी रिलोकेशन की फैसिलिटी हो जाती है. कैसे कि जब भी आपका प्रोग्राम किसी दूसरी मेमोरी में शिफ्ट हुआ या किसी और मेमोरी सेगमेंट में उसको हमने शिफ्ट किया, सिस्टम ने, तो उस केस में हमें सिर्फ सेगमेंट एड्रेस का कंटेंट को चेंज करना पड़ता है. बाकी किसी भी ऑफसेट एड्रेस का कंटेंट चेंज नहीं करना पड़ता. ओनली द सेगमेंट एड्रेस इज टू बी चेंज. नो अदर इंस्ट्रक्शन. कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होती, कोई ऑफसेट एड्रेस का कंटेंट चेंज नहीं होता. तो दैट्स व्हाई इट्स रिलोकेटेबल. इजी हो जाता है टास्क. आपको फिर किसी भी रजिस्टर का कंटेंट चेंज नहीं करना. जस्ट सेगमेंट रजिस्टर्स के जितने भी सेगमेंट रजिस्टर्स आप यूज कर रहे हो उन सबके कंटेंट चेंज कर दो. कोई आपको एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको
ऑफसेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, योर प्रोग्राम विल स्टिल वर्क फाइन. सो दैट्स व्हाई सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग अलाउज रिलोकेशन. मैं पीछे जा रही हूँ, बता दिया मैंने. नाउ कम टू द प्रोटेक्टेड मोड. प्रोटेक्टेड मोड में अभी तो things were simpler. We had 1 megabyte of data, we have segment address, offset address, we were adding them, we were getting our effective addresses. But now the things have become complex. We have a protected memory addressing, we have a protected memory too. Any memory that is above 1 megabyte of memory is called protected memory. Okay, protected memory कब पिक्चर में आई, जब आपकी विंडोज पिक्चर में आई. बिकॉज आप उसे अभी तो आप सिंपल क्या करते हो, माउस कर्सर ले गए, आइकन क्लिक किया, आइकन से सामान उठा लिया, फोल्डर पे गए, फाइल खोली, फाइल पे काम किया, फोल्डर पे गए, गेम खेल लिया. ठीक है, अर्लियर दिस वाज नॉट पॉसिबल विदाउट विंडोज. यू हैड टू डू you just like you do in Linux डेस्कटॉप के अंदर, फिर फोल्डर के अंदर, फिर फोल्डर के अंदर वाली कमांड चलाते हो ना, जैसे cd this, उसी तरीके से आपको कमांड लाइन चलाना पड़ता था. तो जब विंडोज पिक्चर में आई, the memory was to be expanded, memory expand हुई. But to make things compatible, the system designers जो थे, उन्होंने 1 megabyte मेमोरी को भी एज इट था, एंड उसके ऊपर की मेमोरी को उन्होंने प्रोटेक्टेड मोड बोल दिया. तो एनी मेमोरी दैट इज above 1 megabyte is called protected memory. ठीक है, so in protected memory everything is same, but your segment and offset addressing change हो जाती है. ठीक है, अब जो आपको effective address पहले खाली segment plus offset addressing से मिल जाता था, अब वो आपको सेगमेंट प्लस ऑफसेट से नहीं मिलता. ठीक है, सेगमेंट एड्रेस में अब आपको एक सेलेक्टर मिलता है, और उस सेलेक्टर की हेल्प से आप एक डिस्क्रिप्टर ले लेते हो. ठीक है, अब आपको क्या होता है कि अर्लियर आपको जो, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर अभी भी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है. यू हैव एन अलमीरा, आपको पता है आपकी अलमीरा कहाँ है, आपने अलमीरा खोली, आपको शर्ट सामने मिली. ठीक है, अब आपकी अलमीरा में वो शर्ट आपको सामने नहीं मिली, वो शर्ट किसी कंपार्टमेंट में रखी. तो अब यू हैव टू नो कि वो कंपार्टमेंट कौन सा है. उस कंपार्टमेंट को आपने खोला, नाउ यू हैव द शर्ट. सो यू डोंट, वंस यू ओपन द अलमीरा in protected mode, you don't have direct access to that shirt, but you have to go to some other compartment to get that shirt. Okay, so but in case of real mode के case में, you just open the almirah, you get the shirt in front of you. So that was easy. You don't have to search the compartments, different compartment कि कहाँ पे आपकी शर्ट है. ठीक है, but in protected mode it's an indirect searching. You have the almirah, you open the almirah, you open the compartment, then you get the desired shirt. Similarly, so now in the selector segment address, you are not getting the address of that memory location, but you are getting a selector which is giving you a descriptor. A descriptor में is everything stored about your memory segment. जो भी सेगमेंट आप एक्सेस करना चाहते हो ना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस डिस्क्रिप्टर में स्टोर्ड है. तो अर्लियर व्हेन यू हैड दिस माइक्रो मेमोरी सेगमेंट विद यू in your hands, now you have a dabba in your hand. A descriptor को I call dabba, I call it dabba because in dabba that I have every information about that memory segment, access rights, कितना साइज है, बेस क्या है, लिमिट क्या है, ये सब मेरे पास है. ओके, सो ऑफसेट एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती. नाउ आई ओनली नीड अ सेगमेंट रजिस्टर, एंड सेगमेंट रजिस्टर में आई गेट अ सेलेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज सेलेक्टर का डिजाइन कैसा होता है. पहले ये एक बार रीड मार लेते हैं. द डिस्क्रिप्टर इज लोकेटेड इन द सेगमेंट रजिस्टर, डिस्क्राइब द लोकेशन, लेंथ एंड एक्सेस राइट्स ऑफ द सेगमेंट ऑफ मेमोरी. इट सेलेक्ट्स वन ऑफ द 8192 डिस्क्रिप्टर फ्रॉम टू टेबल्स ऑफ डिस्क्रिप्टर. दो टेबल्स होती है डिस्क्रिप्टर की, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल. दोनों में 8192 डिस्क्रिप्टर्स होते हैं. ठीक है, इन टोटल प्लस कर लेना जो भी जितना है, तो टोटल आपके पास इतने डिस्क्रिप्टर्स अवेलेबल होते हैं. जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स होते हैं दैट आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, बट लोकल डिस्क्रिप्टर इज फॉर अ पर्टिकुलर टास्क. ओके, तो बता दिया. ओके, ये हो गया. Each descriptor is 8 bytes in length. Global and local descriptor tables are maximum of 64K bytes. This is a typical design of descriptor. ये 80286 है, ये 386 ये 64 बिट का है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिट 0 से 15 तक जो बिट है वो आपको लिमिट बताएगी. ठीक है, तो फर्स्ट 15 bits will tell you the limit, 16 bits will tell you the limits, next 16 bits, 16 नहीं, next 24 bits will tell you the base, then 8 bits will tell you the access height, and these bits will be null. These bits null है, इसी वजह से ये वाली compatible है. ये वाला जो दोनों माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसी वजह से compatible है कि ये वाले बिट्स को स्टोर करवा दिया है, मतलब रिजर्व करवा दिया है
कि जब फ्यूचर में कोई बड़ा प्रोग्राम आएगा, बड़ी लेंथ का प्रोग्राम आएगा, बड़ा माइक्रो प्रोसेसर आएगा, तो उसके लिए वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो जब when your protected mode is working in any of the microprocessor from 386 to P4, this is going to be a descriptor. Okay, you will get to know about D, G, B, A, B also. And this is your 64-bit microprocessor descriptor. Now come to the let's know about the bits. What are the different bits are addressing? Base address descriptor indicates a static location of the memory. You very well know. I'm just reading it. G of a granularity bit allows the segment from 4K bytes to 4G bytes. If G is 1, it's 4G bytes. If G is 0, it's 4K bytes. Okay, because in protected mode, your segment can be 4G. Your segment can be 4G बाइट से 4K बाइट्स तक का हो सकता है, 4K बाइट से 4G बाइट्स तक का हो सकता है। तो कितना सेगमेंट है, दैट इज डिफाइंड बाय दिस G बिट। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, ओके, लेट्स स्टार्ट विद, let's continue. Granularity bit. Okay, now comes to the access right byte control access to the protected mode segment, whether your segment is readable, writable or both, readable, writable both, तो वो आप access right byte से control कर सकते हो, ठीक है। If the segment goes beyond its limit, protection fault आ जाता है। You can specify whether a data segment can be written or is write protected. So ये सब आपका access right byte के थ्रू आप handle करवा सकते हो। एक्सेस राइट बाइट में आपकी इस तरीके से डिफरेंट बिट्स जो होती हैं वो हैंडल करती है चीज़ों को। A0 है सेगमेंट नॉट एक्सेस, A1 है सेगमेंट हैज बीन एक्सेस। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू द डायग्राम एंड let me know if you find any doubt when you start to read this chapter. Yeah, अब descriptors are chosen from the descriptor table. क्या होता है कि जब मैं सेलेक्टर के थ्रू किसी डिस्क्रिप्टर सेलेक्टर के थ्रू मुझे ये पता चलता है कि आई हैव टू गो टू दिस डिस्क्रिप्टर, that descriptor table, that descriptor is stored in a descriptor table. So I go to the descriptor table, take the content of that descriptor. First of all, let's see how segment address looks when it comes to the protected mode. The segment address में selector होता है, एक TI bit होती है और एक request privilege level होता है, ठीक है। तो TI bit से आपको ये पता चलता है कि whether it's a global descriptor, you have to search, you have to look for the descriptor in a global descriptor table or local descriptor table. Request privilege level से ही you get to know कि जो भी segment है या जो भी प्रोग्राम है उसका privilege level क्या है। If request privilege level 00 है, that means its highest, it should be handled first, and if 11 है, then other program can be handled before that. Okay. So this question, this was asked in exam also कि what is the, how is a typical segment register looks in case of protected mode. So this you will have to draw fully. ये draw कर दोगे, you will get the full example or full marks, or you will have to define these bits also. Okay. Now this is a typical example. मैंने आपको बहुत पहले भी ये समझाया है कि first 16 bits limit है, next 24 bits are your days,
एंड दीज आर योर एक्सेस राइट्स बाइट। ठीक है, ये जो है आपका ये 80286 वाला डिस्क्रिप्टर है। सो DS0008 को जब आप एक्सपेंड करोगे, व्हेन यू विल एक्सपेंड इट, यू विल गेट दिस। एंड जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेलेक्टर ने आपका 0th डिस्क्रिप्टर को सेलेक्ट किया है, फर्स्ट डिस्क्रिप्टर को सेलेक्ट किया है, और 8 वगैरह से आपको पता चल जाएगा। मतलब आप, मैंने आपको एक्सपेंड करके, मैंने ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर भी किसी को डाउट है तो लेट मी नो। ये पूरी चीज आपको एक्सपेंड करनी पड़ेगी, और ये फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये सेलेक्टर पार्ट है, ये टीआई पार्ट है, ये रिक्वेस्ट प्रिविलेज पार्ट है। ठीक है, तो सेलेक्टर की हेल्प से हमें फर्स्ट डिस्क्रिप्टर मिल जाएगा, और फर्स्ट डिस्क्रिप्टर पे अगर हम देखें, द फर्स्ट 16 बिट्स शुड बी द लिमिट, नेक्स्ट 24 बिट्स आपकी बेस होनी चाहिए, और बाकी आपके एक्सेस राइट होने चाहिए। ठीक है, सो इससे जब आप बेस पे जाते हो, यू हैव the base is 100000. When you go to that base, you get the data segment, the desired data segment. Okay, this is how descriptor works. Earlier you were getting this, earlier you were getting this directly from this. Now you have a compartment in between. पहले आपको इससे डायरेक्टली शर्ट मिल जा रही थी, लेकिन अब आपको इससे एक कंपार्टमेंट का एड्रेस मिला, उस कंपार्टमेंट को खोला तो यू गेट योर शर्ट। इसको इस तरीके से समझो। ओके, सपोज दिस इज एन अलमीरा, जब आपने इसको खोला, सो यू गेट द शर्ट डायरेक्टली रियल मोड, you get a compartment, and in that compartment you get the shirt protected mode. Okay, so that's the only difference between real mode and not the only difference, but that's how addressing is differed in protected mode and real mode. Okay, so I hope this example is clear, because no one is asking doubt. This is to be expanded. This is a segment register. This is to be expanded. Selector is to be selected. TI bit is to be selected and RPL bit is to be selected. RPL का तो ऐसा कुछ यूज नहीं है, TI का भी ऐसा कुछ यूज नहीं है, बट यहाँ हमें ऑलरेडी पता है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है, उससे पता चल जाएगा ग्लोबल है कि लोकल है। ठीक है, सेलेक्टर का यूज है कि कौन सा डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करना है। जब आपने ये डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट कर लिया, आपको इस डिस्क्रिप्टर में बड़ा सारा डेटा मिला, उसको जब आपने मैप किया अपने डिस्क्रिप्टर डायग्राम से, तो यू गॉट कि द फर्स्ट 16 बिट्स 00FF आपकी लिमिट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो सेगमेंट है वो एंड हो जाएगा, एंड दिस 24 बिट्स आर योर बेस, एंड दिस इज योर एक्सेस राइट। तो देखो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, योर बेस एड्रेस इज दिस एंड योर एंडिंग एड्रेस इज बेस प्लस लिमिट। Okay, so I hope this is clear, because no one is asking that. Now come to the program invisible register. प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स का एज सच प्रोग्राम में कोई डायरेक्टली यूज होता नहीं है, तो फिर उनका यूज कहाँ होता है? दे आर यूज्ड बाय द सिस्टम फॉर कैशे पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हमारे पास ग्लोबल डिस्क्रिप्टर और लोकल डिस्क्रिप्टर होती है, टेबल्स होती हैं। These two tables are stored in your memory again. Now we have a global descriptor table register, एक local descriptor table register. जो global descriptor table register होता है, उसमें आपका global descriptor का एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, और जो आपका लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर होता है, उसमें आपके लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का एड्रेस स्टोर होता है। अब होता क्या है कि सपोज ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट CS का जो एक्सटेंडेड ये पार्ट है, which is not available to us, and TR, LDTR, GTTR, IDTR, these registers are not available to us. These are program invisible registers. These registers are used as cache. एक कैशे के जैसे यूज होते हैं। अब आपका क्या है कि आपकी जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है और लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है, वो आपकी मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है, अगर आप, जब क्या होता है कि जब मेरा कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या पर्टिकुलर सेगमेंट एक्सेस करना होता है मुझे, तो मैं बार बार ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से वो डिस्क्रिप्टर उठाऊंगी। ठीक है, तो मेरी बार बार मेमोरी एक्सेस होगी, तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर में उस वाले एड्रेस को स्टोर करके रख लेती हूँ। तो इफ आई नो कि मेरा सेगमेंट एड्रेस हमेशा सेम है, अगर 10 बार वो सेम चल रहा है, तो 10 बार आई हैव टू गेट दैट डेटा फ्रॉम द GDTR इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग इट फ्रॉम मेमोरी, from directly GDT which is stored in the memory. So I am saving memory accesses. मैं 10 मेमोरी एक्सेस भी बचा रही हूँ, मैं अपने सिस्टम को बहुत फास्ट कर रही हूँ, और अगर मैं 10 मेमोरी एक्सेस नहीं बचा रही हूँ, तो मैं अपने सिस्टम को स्लो कर रही हूँ। ठीक है, इन दी एंड आपका सिस्टम शुड बी फास्ट एफिशिएंट, फास्ट एंड एफिशिएंट, ये गुड फीचर्स होते हैं ना, आपके ओएस में पढ़ा होगा आपने। तो जब भी सपोज मेरे पास जब भी मेरा सेगमेंट रजिस्टर का कंटेंट सेम है, तो मैं क्या करती हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल विच इज स्टोर्ड इन द मेमोरी अगेन एंड अगेन, बार बार वहां से उसे एक्सेस करने से बेटर मैं क्या करती हूँ,
उस एड्रेस को स्टोर करके GDTR में रख लेती हूँ, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में रख लेती हूँ, टेबल रजिस्टर में रख लेती हूँ और वहां से उसे एक्सेस करती हूँ. ओके, सो दिस इज सिमिलरली इज द LDTR. ठीक है, LDTR के साथ भी ऐसा ही होता है. अगर मेरा कोई लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर से मुझे कोई डिस्क्रिप्टर बार बार मुझे एक्सेस करना है, तो आई एम जस्ट इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग इट एवरी टाइम, आई एम जस्ट स्टोरिंग द कंटेंट इन LDTR. और जब मेरा सेगमेंट एड्रेस चेंज हो जाएगा तो मैं फिर से मेमोरी एक्सेस करके वो वाले कंटेंट को स्टोर कर लेती हूँ. ओके, सो इन दिस वे आई एम जस्ट saving memory accesses, and by saving memory accesses I am saving processing time for my CPU. ठीक है, आपने पढ़ा होगा OS में कि कैसे CPU से कम मेमोरी एक्सेस करते हैं. कैशे वहाँ पे भी पढ़ के आएंगे, वही कुछ कैशे है. यहाँ पे बस आपकी कैशे कोई लेवल 2 कैशे नहीं इम्प्लीमेंट की गई है. यहाँ पे आपके सिंपल रजिस्टर्स को कैशे की तरह यूज किया जा रहा है. ओके, ये वही उसने कहानी पूरी बताई है, पढ़ लेना एक बार, पता चल जाएगा आपको. ठीक है, ये अब इसमें कुछ नहीं रहता. ये चैप्टर 2.4 सेक्शन हमारे कोर्स में नहीं है. फिर हमारे कोर्स में आता है फ्लैट मोड मेमोरी. फ्लैट मोड मेमोरी इज व्हाट यू आर वर्किंग दीस डेज. फ्लैट मोड मेमोरी 64 बिट मेमोरी, वो 64 बिट इंस्ट्रक्शन जहाँ पे एक्सेस कर दिए हैं. अभी तक अगर आपने क्वेश्चंस भी देखे हैं, चैप्टर 4 तक आप पढ़ चुके हो, तो you can either work with 16 bit instruction or 32 bit instruction, but most of the people now working with the 64 bit mode. Whereas 64 bit mode means you are working with a flat mode memory, and flat mode memory में a flat mode memory system is one जहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं होती और फिर डायरेक्ट आपके पास एक रजिस्टर होता है, डायरेक्ट वहाँ पे आपको मेमोरी का एड्रेस मिल जाता है, एंड you get access to that location where your data is stored. ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे हमारे रजिस्टर साइज इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें वो डिस्क्रिप्टर वाला वो कंपार्टमेंट के अंदर कंपार्टमेंट वाला केस ही खत्म हो जाता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम भी नहीं आती. तो ना सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग होती है, ना हमारी वो डिस्क्रिप्टर एड्रेसिंग होती है. तो डायरेक्ट एड्रेस 40 बिट का एड्रेस हम जनरेट कर सकते हैं एक बार में, तो डायरेक्ट हम वो किसी एक रजिस्टर में डाल के डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट फ्लैट मोड मेमोरी. फ्लैट मोड मेमोरी के बारे में ज्यादा नहीं है, इतना ही है. सो नाउ चैप्टर 2 इज डन, रिवीजन इज डन, and if anyone has doubts they can ask me, otherwise I'll leave the class, and chapter 3 ka I'll give you revision tomorrow. किसी को डाउट नहीं है? अच्छा मैम, हाँ मैम क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे मैम? मतलब इसमें तो काफी टफ है, मतलब छोटी छोटी चीजों को याद रखना होगा, लाइक रजिस्टर्स के बारे में. तो क्वेश्चन यस, यू विल हैव टू. मैंने इसीलिए चैप्टर 2 से 2 ही चैप्टर्स दिए हैं आपको कि आप अच्छे से 2 ही प्रिपेयर करो, बट अच्छे से प्रिपेयर करो. तो क्वेश्चंस जो है, अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स पकड़ोगे, या मेरे को पुराने क्वेश्चन पेपर शेयर करने थे ना, मैं वो शेयर करूंगी, उनको पकड़ना और देखना कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 क्वेश्चंस आए हुए और उनको करना. ओके, तो आई थिंक बहुत आइडिया लग जाएगा उससे. और बाकी तो मैं बताती ही रहती हूँ कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, उससे अलग तो मैं भी नहीं पूछने वाली, डोंट वरी. So my aim is to make you learn 2 chapters properly. मैं ज्यादा सिलेबस नहीं दे रही, तो 2 चैप्टर्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और पढ़ लोगे, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी क्या है, आज क्या डेट है? आज तो 9 ही है ना. योर टेस्ट इज ऑन 23. आराम से पढ़ोगे, गिव इट 2 days. 2 days में आपके 2 चैप्टर्स हो जाएंगे, बट आज पढ़ लोगे तो एंड में बहुत हेल्प रहेगी. ठीक है, और उसके अलावा भी कोई डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल सॉल्व द डाउट्स. जब उससे टेस्ट से पहले जितने भी डाउट्स है सब क्लियर कर लेना. बाकी पढ़ना आपको ऐसे ही पड़ेगा अजय, बिल्कुल डीपली घुस के पढ़ना पड़ेगा, तभी यू विल बी एबल टू टैकल क्वेश्चंस इन एग्जाम हॉल आल्सो. बिल्कुल डीप पढ़ना पड़ेगा. और किसी को डाउट है? आई एम मार्किंग अटेंडेंस. दोज हु वांट टू गो दे कैन गो, दोज हु वांट टू हैव डाउट्स दे कैन आस्क देयर डाउट्स. लेट मी चेक. ओके, अरे भाई डाउनलोड्स में चले गए. किसी को डाउट नहीं है? हो गया सबका? अगर फ्यूचर में भी कभी यू वांट मी टू explain this chapter again या any of the chapter again, I will explain it to you, don't worry about that. but हाँ, पढ़ना आपको डीप में ही पड़ेगा. माइक्रो प्रोसेसर इज फुली कंसेप्चुअल, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत तगड़ा कंसेप्चुअल है,
दैट्स व्हाई इससे बच्चे डरते हैं, बट अगर आप मेरी मानो तो इट्स द इजीएस्ट मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। और इसमें जो रट्टा वाले चैप्टर है वो भी मैं बताऊंगी, इसमें रट्टा वाले कौन से चैप्टर्स, 9, 10 एंड 11 आपके, और 18 रट्टा वाले चैप्टर्स हैं। तो जब तक रट्टा वाले नहीं है तब तक आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। 9th सेक्शन ये डाउट है इसको तो ठीक है, फिर जा सकते हो आप, पढ़ो अच्छे से, बी रेडी फॉर द टेस्ट। एंड कल चैप्टर 3 का हम वो कर देंगे, कल चैप्टर 3 का रिवीजन हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ओके, क्वेश्चन, वो डॉट एस एएसएम फाइल सबको मिल गई थी? देखो आई हैव, मैंने प्रोग्राम सेक्शन के लिए, मैंने टीम्स में प्रोग्राम सेक्शन के लिए एक प्रोग्राम करके सेक्शन बना दिया है, तो प्रोग्राम्स आपको सारे वहां से मिल जाएंगे, ये देख लो। बस कुछ हो रहा है क्या? अगर आप फाइल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे आई ट्राई कि मैं सारे प्रोग्राम्स यहीं पे डाल दूं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर पोस्ट में रहते हैं ना तो ऊपर नीचे इतनी सारी चीजें होती हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। सो सारी चीजें आई विल ट्राई टू सेव हियर ओनली, सो यू विल हैव इजी एक्सेस टू ऑल योर प्रोग्राम्स। तो अभी मैंने बीसीडी वाले तो सारे डाल ही दिए हैं, बाकी और भी प्रोग्राम होंगे वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आई थिंक वी कैन लीव नाउ। Okay then. Thank you class. Bye bye. Have a good day.